Dear brothers and sisters in Christ, we House of God Church of Khagan, Navi Mumbai would like to welcome you for this auspicious day. As we are celebrating the resurrection day of the Lord, let's come and experience the power and the love of Christ, what He has done in the cross of Calvary. As the team is going to lead us into praise and worship, let's come and rejoice in the Lord. My shame is taken away. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I raise a banner. I raise a banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift the burden. I rise with you, dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Yes, He lives forever and ever. कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन
सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशुआ। Praise God. Praise God. Today is the day और आज का एक दिन है the ये, whole world celebrate the resurrection of Jesus Christ. और पूरे संसार में परमेश्वर का यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन दिवस को मनाते हैं। But for us, लेकिन हमारे लिए, every Sunday is the resurrection Sunday. लेकिन हर एक रविवार हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन है। And in our lives, और आज हमारे जीवन में every minute we remember the resurrection of Jesus Christ. हर एक क्षण में प्रभु का हम लोग उस पुनरुत्थान को हम देखते हैं जीवन Because में। the empty tomb stands as a constant reminder to you and me और जो खाली जो कब्र है वो हम सभीयों के लिए एक चिन्ह है that Jesus is alive. कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है And He is among us. और वो प्रभु आज हमारे बीच में है। As long as the tomb is empty, जब तक वो कब्र खाली है, my Savior is alive. मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, He is alive. वो जीवित है। There in that tomb, और उस कब्र में the defeat turned into victory. और जो हारा वो जो चीज था वो जीत गया, Depression turned into joy. और जो निराशापन था वो खुशी में बदल गया, Hopelessness turned into hope. और जहां पे कोई आशा नहीं थी वहां पे आशा आई, That hope that nobody can take away. और वो जो आशा जो कोई नहीं छीन सकता। Today, आज के we दिन would like to share the message of hope. और आज मैं आपके सामने में आशा का एक मैसेज को रखना चाहता हूँ। Thank God for the gift of Jesus Christ. और परमेश्वर को धन्यवाद कि जो उत्तम से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में दिया है। Jesus Christ, the Son of God, और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, who lived in the face of the earth for 33.5 years. और 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जिए, He was arrested and he was judged. और उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर न्याय दिया He गया, was punished and he was crucified on the cross of Calvary. और उनको दंड दिया गया और कलवरी क्रूस में उनको टांगा गया, He was died and he was buried. और उनको वो मारे गए और उनको गाड़ा गया, He was put in a tomb and the seal was placed on the tomb. और उनको कब्र में दिया, उनको दफनाया गया और उस कब्र के ऊपर एक सील दिया गया। But on the third day, लेकिन तीसरे दिन he rose again from the dead और वो वापस जीवित उठे वो उस मृत्यु से, and is still alive. और वो आज भी जीवित है, King of kings and Lord of lords प्रभुओं का प्रभु, and a soon coming king. और वो वापस आने वाला राजा है। Jesus Christ, the Son of living God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। Hallelujah. Hallelujah. Throughout the Gospel of John, और आप उस यूहन्ना किताब में देखते we हैं can see his awesome deity और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर खुदा है, and his ability to reverse any bad situation. और वो कुछ भी चीज को वो परिवर्तन कर सकते हैं वो। This happened in Bethany. और हम बेथनी में देखते हैं, He raised Lazarus from the dead. और बेथनी में लाजरस जो व्यक्ति था वो मरा था, उसको जी उठाया। In this event, we can see the human side of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के वो शारीरिक रूप को देख सकते There हैं, is weeping with them. और वो प्रभु यीशु उनके साथ रो रहे हैं। At the same time, लेकिन उसी वक्त is reversing that caused them to cry. और लेकिन वो हर चीज को वो बदल सकते हैं। Throughout the book of John, हम पूरे याकूब के इस किताब को यूहन्ना की किताब को देखते हैं, Jesus identifies himself as I am. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं जो मैं हूं। And he not only said that, he demonstrated that. लेकिन उन्होंने केवल ऐसे कहा नहीं, लेकिन उन्होंने दर्शाया इस बात को। In John chapter 11, हम यूहन्ना के 11वें अध्याय में देखते हैं, when 3 people he loved, और तो 3 लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, Martha, Maria and Lazarus. और मार्था, मरिया और लाजरस से, So they were struggling और वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, because Lazarus was dying क्योंकि लाजरस वो मर रहा था and his sisters were crying out. और उनकी जो बहनें थी वो बाहर रो के रो रहे थे। Martha went to Jesus मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास गई and said, और कहा, don't you care? क्या तू हमारी परवाह नहीं करता? You could have been here earlier. अगर तू हम कुछ देर पहले अगर आया होता, My brother didn't have to die. मेरा भाई शायद नहीं मरता। Then Jesus said in John Ish- chapter 11 and verse 25 and 26, यीशु मसीह ने यूहन्ना का 11वां अध्याय उसका 25 और 26 में कहा, I am the resurrection and the life. और यीशु मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ, He who believes in me, और जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, though he may die, हालांकि वो मर भी जाए, he shall live. लेकिन वो जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। He said, I am the resurrection and life. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। So that is the beauty of knowing Jesus Christ. और ये एक खूबसूरती है प्रभु यीशु मसीह को जानने का। When you know Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं we escape death और हम उस मृत्यु से बच जाते हैं, because Jesus is the resurrection. क्योंकि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है।
today morning, और आज की सुबह के इस वक्त what do you think? आप क्या सोचते हैं? What has died in your life today? आपके जीवन में क्या कौन सी ऐसी चीज है जो मर चुका है? Maybe hope has died. जब आपका जो आशा खत्म हो गई है, Maybe some relationship has died. हो सकता है कि शायद आपका रिश्ता मर चुका होगा, Maybe your perspective is died. शायद आपका जो होने वाली जो बातें हैं वो मर चुकी होगी, Maybe your dreams has died. शायद हो सकता है आपका सपना जो है वो मर चुका होगा। Remember today, लेकिन आज एक बात को याद रखना, Jesus Christ is the resurrection. लेकिन याद रखना प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, He can take the things which are dead और जो चीज आपके जीवन में जो मर चुका है वो प्रभु के पास लेके जा सकते हैं, and bring them back to life. और उस चीज को वापस जीवन में लेके आ सकते He हैं, wants to do that in your life. और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करना चाहता है, Bring you back to life. आपको वापस जीवन में लेके आना चाहते हैं, Because He is I am. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है He is relevant to you right now. और वो आपके साथ कुछ बात करना चाहता The है, dead situations in your life right now. और आपके जो मरा हुआ जो सिचुएशन है उसमें प्रभु कार्य करना When चाहता you है। read the story, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, Martha said to Jesus, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा I know in future my brother is going to rise up. कि आने वाले दिनों में मैं जानता हूं कि मेरी जो भाई है वो वापस जी उठेगा। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, No, I am not talking about the future. यीशु मसीह ने कहा कि मैं आने वाले दिनों के बारे में नहीं कह रहा I हूं, am talking about the present. मैं अभी के इस वक्त के बारे में कह I रहा हूं, am in the present. और मैं इस वक्त में हूं, I am right here. और मैं यहाँ अभी हूं, I am right here with you in the pain. और मैं इस वक्त आपके साथ इस दर्द में मैं हूं। Jesus did not keep them away from the pain, और यीशु मसीह ने इनको दर्द से दूर नहीं रखा, but He joined them in the pain. लेकिन उस दर्द में उनके साथ जुड़े रहे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is relevant to the present tense of your reality, beloved. और यीशु मसीह जो आपके साथ जो है इस दर्द में भी आपके साथ है वो, So faith in Christ और जो यीशु मसीह के साथ उस विश्वास gives you में, a guarantee for eternity. और परमेश्वर प्रभु हमें एक गारंटी देता है अनंत काल जीवन का, It gives a hope for the resurrection. और हमें आशा देता है पुनरुत्थान का। No matter how deadly your situation appears to be right now. हालांकि आपका जो परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, But you know, He finally told Martha, उन्होंने मार्था से कहा, if you believe, you will see. यीशु मसीह ने कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम देखोगे, If you believe, you will see. अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम देखोगे। Not if you will see, you will believe. ऐसा नहीं है कि अगर तुम देखोगे तो ही विश्वास करोगे, Because faith must precede sight. लेकिन जो विश्वास है वो आने वाले जो चीज है उसको देखता है। But a faith Jesus asked was not just verbal faith. और ये जो विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहे केवल बोलने का विश्वास नहीं है, He asked them, move the stone. और उन्होंने उनसे कहा कि वो जो पत्थर है उसको हटाओ। Not until she moved the stone, जब तक उस पत्थर को नहीं हटाती है she वो, could not see what resurrected Christ could do in their life. और तब तक वो पुनरुत्थान वाला यीशु मसीह उनके जीवन में क्या कर सकते हैं वो उसको नहीं देख सकते। Maybe your resurrection has not occurred और शायद हो सकता है कि जो आपका पुनरुत्थान आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ होगा, because you never moved the stone. शायद हो सकता है कि आपने उस पत्थर को नहीं हटाया। Demonstrate today that you believe in Jesus Christ, the great I am. आपको आपके विश्वास में दर्शाना है कि प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने कहा कि जो है वो, Do what He told you to do. आपको वो करना जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है करने के लिए, Act in obedience. और आपको उस आज्ञा के अनुसार चलना है। He will bring resurrection in your life and in your circumstances. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उस पुनरुत्थान को लेके आएगा, आपके हर एक जो सिचुएशन है उसमें लेके आएगा। Now we are in the situation of this pandemic. हम जानते हैं कि इस सिचुएशन जो पैंडेमिक है जो चल रहा है, We are worried about the virus हम सोच रहे हैं कि इस वायरस के बारे में हम घबराए हुए हैं, that is causing a lot of pain and the heartache across the world. और हम जानते हैं कि बहुत सारा दर्द है और बहुत सारा हमारा दिल टूट चुका है पूरे इस संसार में। Martha and Mary, they were concerned about the well-being of their brother. और मार्था और मैरी भी अपने भाई के लिए बहुत ही चिंतित थे, They wanted Jesus to do something in their life for और his brother. वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनके जीवन में उनके भाई के लिए कुछ करे। Probably we want Jesus to do something in our life in this जैसे कि situation हम भी right now. चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ करे, Like Martha and Maria, we also crying out, Lord, help us out. और मार्था और मरिया ने जैसे प्रभु से कहा कि प्रभु हमारे बचा हमें, But we see the things got worse. लेकिन हम जानते हैं कि जो उनका जो प्रॉब्लम था और खराब हो गया, And before they could get better. और वो अच्छे होने से पहले। But when Jesus stepped in, लेकिन जब यीशु मसीह अंदर आए, when Jesus stepped in, जब प्रभु यीशु मसीह उनके समस्या we में know how आए, the situation got changed. हमने देखा कि वो समस्या कैसे पूरी तरह से बदल गई। Let's cry, Lord, we need you right now. और जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु तेरी मुझे मदद की जरूरत है, We need you to step into our situation right हम now. चाहते कि प्रभु तू हमारे समस्या में तू आ जाए, We want you to eradicate this disease, Lord. और प्रभु तू हम चाहते हैं कि तू इस जो रोग को तू पूरी तरह से बाहर निकाल दे। But God gave them a condition.
लेकिन यीशु मसीह ने उनको एक कंडीशन दिया They have to remove the stone. और उनको उस पत्थर को हटाना पड़ा। In other words, दूसरे शब्द में they had to position themselves for the miracle to deal with the dead situation. अपने आप को तैयार करना है ताकि वो चमत्कार को देख सके। Yes. So let's make sure today आज आए हम इस बात को गहराई से सीखें, we are positioning ourselves अपने आप को हम तैयार करें for the miracle which we are praying for. और उस चमत्कार के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Jesus said to Mary, और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, this is the time for miracle. और ये जो समय है चमत्कार का है। I believe और मैं विश्वास करता हूँ God wants to do a miracle परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है। in your lives, आपके जीवन में, in your family, आपके परिवार में, in your marriage, आपके शादीशुदा जीवन में, in your society, आपके समाज में, in your country. आपके इस देश में। But He just wants that stone to be removed. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो पत्थर वहां से हट जाए He wants to know that we have faith. और आपको वो चाहते हैं कि आपके पास विश्वास है। Faith is not a feeling, और ये जो विश्वास है केवल ये भावना नहीं it's है, acting on God's word. और ये केवल है कि परमेश्वर के उस वचन में चलना। Faith is not an emotion, और ये जो विश्वास जो है केवल हमारी जो मैं जिस तरह से सोचता हूँ उसके बारे में नहीं it है। is acting like it is, even though it is not so. और विश्वास का मतलब वो है हालांकि वो नहीं है। We do because God said so. मैं इसलिए करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है ये करने के We लिए। measure our faith by our actions. और परमेश्वर हमारे उस विश्वास को तोलता है जिस तरह से उसमें हम खड़े रहते हैं, By our movements, हम जिस तरह से हम अपने आप को दर्शाते हैं उसमें, by our talk, also by our walk. हम जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से हम चलते हैं, Yes, we use our lips, हम अपने होठों को इस्तेमाल but करते हैं, faith should be manifested in our lives. लेकिन जो विश्वास है हमारे जीवन में दिखना चाहिए। Remember, याद रखिए, not until she removed the stone, जब तक उन्होंने उस पत्थर को नहीं हटाया she got the miracle of a resurrection. और वो पुनरुत्थान का उस चमत्कार को नहीं देख सके। Jesus believes in resurrections. और यीशु मसीह पुनरुत्थान में विश्वास करते He हैं believes in taking things और प्रभु यीशु मसीह उस चीज को लेना चाहते हैं that looks like there is no hope और ऐसी चीजों को लेना चाहते हैं जिसमें लगता है कि कोई आशा नहीं and है reversing them. और उसको पलट कर देना चाहते Yes, we हैं need a reversal today. और वो पलट कर देना चाहते हैं। A reversal regarding COVID-19. और इस कोविड-19 में परमेश्वर कहता है Yes, we need a reversal today. और ये हर परिस्थिति को बदल देगा। In our life situations, हमारे जीवन में भी, whatever that thing in your life हमारे जीवन में जो कुछ भी क्यों ना हो, which looks like dying हो सकता है कि ये मर रहा होगा, or dead, शायद खत्म हो गया maybe होगा, it is your marriage शायद हो सकता है हमारे विवाहित जीवन, that seems hopeless, हो सकता है कि इसमें कोई आशा ना हो, maybe it is a relationship शायद हो सकता है कि हमारे रिश्ता जो है, with the children that you think there is no hope, it can't be resurrected. हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे लोगों का कोई पुनरुत्थान नहीं हो सकता, शायद Whatever it may be, you think it can be resurrected. हो सकता है कि इसका पुनरुत्थान नहीं हो सकता, Maybe the reversal of the situations or circumstances of your life. शायद हो सकता है कि जो बदलाव जो आने वाला जो मेरी आर्थिक स्थिति में, But today I want to encourage you and remind you, और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना God चाहता हूं, can resurrect and bring back to life any situation. और परमेश्वर आपके जीवन में उस पुनरुत्थान को लेके आ सकते हैं आपके जीवन But the में। question is, लेकिन एक सवाल है have you removed the stone? कि आपने उस पत्थर को हटाया है क्या? Have you done what He asked you to do? क्या आपने परमेश्वर के उस वचन को, उस आज्ञा का पालन किया जो परमेश्वर ने आपसे कहा है करने के लिए? Which demonstrates our faith. और हमें वो दर्शाना है हमारे उस विश्वास को। You will never know what is behind that stone. आप नहीं जान सकते उस पत्थर के पीछे आपके लिए क्या You रखा will है। never know what your miracle can be आप नहीं जान सकते कि वो जो चमत्कार क्या हो सकता है आपके जीवन में, unless He sees you removing the stone, जब तक आप उस पत्थर को हटाते नहीं हैं, until He sees you acting on what He said, जब तक वो नहीं देखते, प्रभु यीशु मसीह नहीं देखते कि जो आपको बोला है कि आज्ञा के अनुसार चलने के which लिए, demonstrates faith in His word. और वो परमेश्वर ने वो दर्शाया उस विश्वास को। When you operate on what do you know, आप जब उस कार्य को करते हैं जो आप जानते हैं, then God goes beyond the stone परमेश्वर उस पत्थर के पीछे हैं and do what you don't know. और वो करते हैं जो आप नहीं जानते। Because once the stone was removed, जैसे उस पत्थर को जब एक बार वो हट जाता है, we know Jesus prayed the prayer. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक वहां पे प्रार्थना He किया, prayed, उन्होंने प्रार्थना की Father, I always knew you hear me. और उन्होंने कहा कि पिता मैं जानता हूं कि तू मेरे हर एक प्रार्थना को सुनता है। And we know और हम भी जानते हैं, He, His Father never turns down the request of His Son. और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसके पुत्र को कभी भी नकारा नहीं। So we end up in praying in Jesus' name. और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। We want Jesus to authenticate and approve our prayers, our request. और हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना में उस सील को लगा दे, हमारे उसको अप्रूव करें। Waiting to see the obedience from our part और प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि हमारे आज्ञा पालन के उस जीवन को, to His revealed word. ताकि जो बोला गया जो वचन है। So Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, Lazarus,
Lazarus, come forth. और कहा कि लाजर बाहर आ। He didn't say, you all come out. और ये नहीं कहा कि आप सब बाहर आओ। And everybody would have come out of the grave. हो सकता था शायद उस कब्र से सभी लोग बाहर आ जाते That थे, was a specific request, a specific prayer. लेकिन वो जो प्रार्थना था बहुत ही सिद्ध प्रार्थना था। So today, as you come before Jesus, और हम जैसे इस प्रभु यीशु मसीह के सामने आते be हैं, specific today. और आज बहुत ही एक सिद्ध तरीके से आना है। What you want Him to do in your life. प्रभु यीशु मसीह से आप क्या चाहते हैं वो आपके जीवन में करे, Mix it with obedience. और आपके उस आज्ञा के अनुसार चलना, The trust in Jesus. और यीशु मसीह में विश्वास करना। Because when there's faith filled with obedience, जब विश्वास आज्ञा के अनुसार चलता है, then we'll watch Him जब वो देखते हैं call the name of the problem, और हमारे समस्या के नाम को पुकारता our है, circumstances, और हमारी हर एक समस्या को our पुकारता है, sickness, हमारी बीमारियों को and देखता है, then we'll see Him do the things that nobody else could do. और फिर वो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। So we do not have answers for many things in our life. कई बार हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता हमारे जीवन में, But today, God wants to be the solution of your life. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बने। He is waiting on us वो हमारे लिए रुके हुए to हैं move the stone. ताकि वो उस पत्थर को हम हटा So सकें। how long God has to wait for us, beloved, और परमेश्वर कितने देर तक परमेश्वर हमारे लिए रुका रहेगा, to do what He told us to do, जो करने के लिए परमेश्वर हमसे कहा कि उसको करने के लिए, so that we can watch Him to do what He promised to do. ताकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो हमसे कहा है करने के लिए, In moving the stone उस पत्थर को हटाने के and लिए, giving us the resurrection we need, ताकि वो हमें वो पुनरुत्थान दे सके, and what are the situation we face, और ताकि कोई भी समस्या हम क्यों ना हो आज, whether it is sickness in our body, हो सकता है कि हमारी शारीरिक बीमारी, whether it's any situation in our life हो सकती है जो समस्या हमारे जीवन that में, needed to be lifted up from the grave, लेकिन हमें उस कब्र से उसने उठाया है, Jesus Christ wants to give you a resurrection. और यीशु मसीह आपके जीवन में एक पुनरुत्थान देना A चाहता है, resurrection in the middle of your trouble और जो एक पुनरुत्थान आपके जीवन के उस मध्य के उस समस्या में and in the middle of your circumstances. और उस समस्या के मध्य में, But He is waiting for you to obey Him लेकिन आज वो रुके यहाँ तक कि हम उनके आज्ञा का पालन करें, and do what He asked you to do. और ताकि हम कर सके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा करने के लिए। That begins with acknowledging that you need Him और ये शुरुआत होता है कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, and you cannot do this without Him, और हम नहीं कर सकते प्रभु तेरे बिना, and our nation needs Him. और प्रभु ये हमारे देश को तेरी जरूरत है, We need to go to Him and say, और हमें उनके पास जाके ये बोलना my है, family needs you, मेरे परिवार को तेरी जरूरत my है, nation needs you. मेरे देश को तेरी जरूरत When you है। read Hebrews chapter 12 and verse 2, और हम हिब्रानियों का 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ते it हैं says, fixing our eyes on Jesus कि Christ. अपने निगाहों को प्रभु में टेके रखना, He is the author and finisher of our life. हमारे आंखों को परमेश्वर की ओर टिका के रखना है, क्योंकि वो ही हमारा लेखक और वो सिद्ध करने वाला है, Get your eyes fixed on Him. और अपने आंखों को प्रभु में लगाए रखना। He should not be second in your life. और कोई प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दूसरा स्थान नहीं होना चाहिए। Fixing your eyes on Jesus does not mean यीशु मसीह में अपने निगाहें को लगा रखना, इसका मतलब ये that you do not have any challenges or any problems. इससे ये नहीं होता कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। It means that इसका ये मतलब है crucifixion Friday becomes the resurrection of Sunday. जो शुक्रवार का जो मरण था वो रविवार का पुनरुत्थान हुआ, This God can take the mess and the issues of our life और जो परमेश्वर जो हमारे जीवन की जो जितने भी बुरी बातें हैं, जो समस्या है, उसको ले सकता है and create miracle और वो एक अद्भुत रीति से एक चमत्कार कर if सकता you है। get your eyes fixed on Jesus. जब आपकी आंखें जब प्रभु यीशु मसीह में गड़ी When रहती you हैं, start walking with Him, जब आप उसके साथ चलते हैं, time comes in your life you're singing. और तब वो आपके जीवन में एक समय आएगा जब आप उसको ढूंढेंगे, In that time also God will reach you over there और प्रभु यीशु मसीह उस समय आपके जीवन में आपकी समस्या में आएगा and take you out from there और आपको उस वहां से उस परेशानी से आपको and bring निकालेगा you to a place where you should be. और आपको उस स्थान में लेके आएंगे जहां पे आपको होना He चाहिए। that began a good work in you will continue it and complete it, beloved. और जो प्रभु ने आपके जीवन में एक अच्छा जो काम शुरुआत किया है वो उसको लगातार करता रहेगा। So what I want to say, और आज मैं क्या कहना चाहता हूं, Jesus does not start what is not able to finish. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया जो वो शुरुआत की है और जिसको खत्म नहीं कर And if we सकते। started with Him today, आज जैसे हम उनके साथ शुरुआत करते हैं, keep walking with Him. उनके साथ चलते रहना, He will bring you to a conclusion for His glory. और वो आपके एक अंतिम एक जगह पे आपको लेके आएगा उसकी महिमा के He लिए, keeps His promises. क्योंकि वो अपने वाचक को पूरा करता He is है able to bring you to a finishing line. और वो सामर्थ्यवान है आपके उस अंतिम चरण में
लेके आने के the लिए, finish line of life, और हमारे जीवन के उस अंतिम क्षण में लेके the आने के finish लिए, line of his circumstances. और हमारे समस्या का अंतिम उस क्षण में लेके आने के लिए, He who got you started will bring you into a powerful conclusion. और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो शुरुआत किया है वो आपके जीवन में एक अच्छा एक अंत भी करेगा। That means he's going to walk with you through the old destination. और आप मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलता रहेगा आपके हर एक समस्या में, Hang in there, do not quit. और आप उसके साथ चलते रहना, आप वहां से भागना नहीं, छोड़ के ना Keep your जाना, eyes fixed on Jesus. और आपकी आंखों को प्रभु की ओर लगे रखना, He will bring to you a victorious conclusion और आपके लिए एक नया जीवन, एक विजयवंत जीवन देगा वो, because he is the living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। We know what is happening in this world, all are worried. हम जानते हैं कि इस पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, कि सब लोग चिंतित It है, is a wake up call for the Christians. और आज हमें एक जो क्रिस्ती जो लोग हैं उसके लिए एक बुलावट है We ये, are called to be his witness और हमें बुलाया गया ताकि हम उसके लिए एक विटनेस बन सके, and to share the good news ताकि हम दूसरों के साथ ये अच्छा ये जो न्यूज़ है उसको बांट सके, and to make the disciples. और ताकि हम चेले बना सकें प्रभु यीशु मसीह Remember, का। he is the beginning and the end. और याद रखें कि वही शुरुआत और वही अंतिम He is the है, resurrection and life. और वही पुनरुत्थान और जीवन है। So this resurrection Sunday, और आज के इस पुनरुत्थान के रविवार let's be में obedient और आज्ञा के अनुसार उसके and tell पास God, आए, I'm ready to move my stone, Lord. और कहें कि प्रभु मैं इस पत्थर को हटाने के लिए मैं तैयार हूँ। Maybe you lost your passion. हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका जुनून आप खो चुके होंगे, Maybe you lost the first love. शायद आपका जो पहला प्यार आप खो चुके होंगे, Maybe you are too casual towards his kingdom and towards him. शायद हो सकता है कि उनके लिए और उनके राज्य के लिए आप बहुत ही ठंडे हो चुके होंगे, Today, get right with him. लेकिन आज इस समय आप उनके साथ सही हो जाना। As we pray, आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं mean it by your heart. और आपके दिल से इस बात को मानना, He is the resurrection and life. और क्योंकि प्रभु यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है, He can resurrect and bring back to life every dead thing. और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, तो हर एक जो चीज जो मरा हुआ चीज है वो वापस जीवन में लाके दे सकता है। And today, और आज के दिन if you do not know Jesus Christ as a personal savior, अगर आप नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को आपके एक उद्धारकर्ता के नाम पे, come to Jesus for this gift of eternal life आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए ताकि वो आपको ये एक गिफ्ट मिले अनंत काल का जीवन and का, get rid of this virus of sin. और ये जो वायरस है जो पाप का आपके जीवन से निकाल दे, This virus, the sin, it want to destroy you क्योंकि ये जो वायरस जो पाप है जो आपके जीवन को तबाह कर देगा, and remove your hope for heaven and eternity. और आपके जीवन से वो आशा को निकाल देगा जो अनंत काल जीवन है। But the good news is Jesus Christ has given us the cure. और यीशु मसीह ने आपको इस परिस्थिति में एक इलाज दिया So है, he says in John 11, और यीशु मसीह ने कहा है कि यूहन्ना के 11 अध्याय में I am the resurrection and life. कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन And हूँ, whoever believes in him never die. और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, The sin is defeated और जो पाप है वो हारा गया, and the cure is found in life-giving resurrection work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. और जो इलाज है जो पुनरुत्थान का कलवरी क्रूस में वो देखा गया। I heard the story of a father and son. और मैंने कहानी सुना एक पिता और एक पुत्र का, While they were driving in a car, और वो एक कार में जा रहे थे, a big bee flew in through the window और एक मधुमक्खी वो कार के उस खिड़की से अंदर आ गई, and it was buzzing around inside the car and the little boy was panicked. और उस कार के इर्द गिर्द वो घूमने लगा, और वो जो छोटा बच्चा था वो मधुमक्खी की वजह से वो डर गया, He was scared that this bee is going to bite him or sting him. और वो बच्चा छोटा सा बच्चा डर गया कि वो मधुमक्खी मुझे काटेगी करके। This is when the father reached out and grabbed the bee by his hand. और तभी उस वक्त वो पिता आए और उस मधुमक्खी को अपने हाथ से पकड़ The लिया, son was a little relaxed. और जो बच्चा था थोड़ा देर के लिए वो ठीक हो गया, But as the father opened the hand, let the bee go, the son panicked again. और जैसे ही पिता ने उस हाथ को खोला और ये लड़का वापस डर गया, The bee started moving around the son again. और ये जो मधुमक्खी थी उसके बेटे के इर्द गिर्द वापस घूमने He लगी, started making sound, threatening sound. और वो एक दर्दनाक एक ऐसा आवाज करने लगी वो, The child said, और जब उस बच्चे ने कहा, Daddy, this bee is going to bite me. और कहा कि हे पिता मेरे ये जो मधुमक्खी मुझे वापस काटेगी, That is when the daddy said, और उस वक्त इस पिता ने कहा, No son, the bee is not going to bite you. और कहा कि हे मेरे बेटे हे मेरे पुत्र ये जो मधुमक्खी है तुझे अभी नहीं See, काटेगी। when I grabbed the bee, जैसे मैंने उस वक्त जब मैंने इस मधुमक्खी को अपने हाथ में पकड़ लिया it था, stung me, it bit me. और उस मधुमक्खी ने मुझे काटा, It had only one sting. क्योंकि वो काटना केवल वो एक ही बार कर सकती है, That sting is in my hand. और वो जो काटना जो था वो मेरे हाथ में है। All it can do, it can make noise. केवल ये मधुमक्खी केवल आवाज से तुम्हें डरा सकती It है can never hurt you. और तुम्हें कभी कुछ
हानि नहीं दे The सकते। good news is that और ये एक अच्छा समाचार ये है, all death and the Satan can make a lot of noise. और ये जो मृत्यु और ये जो शैतान है केवल वो आवाज कर सकती है, It can never hurt you वो आपको कभी कुछ हानि नहीं दे सकती, because Jesus Christ took the sting of death, क्योंकि यीशु मसीह ने जो मरने का जो डंक है वो खा चुके हैं the वो, cross of Calvary. और कलवरी क्रूस में खा चुके हैं, Defeated death, defeated sin and Satan, and made a public spectacle of them. और कलवरी क्रूस में उसने मृत्यु को और शैतान को हराया। And when you trust Him, और जब आप प्रभु यीशु में विश्वास when you करते trust Him as the personal Savior, हैं और आप विश्वास करते हैं कि वो मेरा उद्धार करता that है, noise will never harm you. और जो आवाज है वो कभी आपको हानि नहीं दे सकती। So right now, और इस वक्त, take a moment, और एक वक्त लीजिए, bow your head, अपने स्तरों को झुकाइए let's pray. और हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, यीशु मसीह, I recognize I am a sinner. मैं अपने आप को परखता हूं और कहता हूं कि मैं पापी हूं, I carry the virus of sin in me. और ये जो पाप का जो वायरस है मेरे अंदर है, I need a Savior और मुझे एक उद्धारकर्ता का जरूरत है, because I cannot save myself. क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। I cannot fix my problem on my own. मैं अपना समस्या का समाधान मैं अपने आप से नहीं दे सकता। I am coming to you, Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पास आता हूं, who died on the cross of Calvary जो मेरे लिए कलवरी क्रूस में मारा गया and rose again on the third day, और तीसरे दिन वो जी उठा, and who is a living God. और आज वो जीवित प्रभु है, You became my substitute. और प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, So now I invite you into my life. और मैं प्रभु तुझे बुलाता हूं मेरे जीवन में, I am going to trust you alone और मैं केवल तुझ पे भरोसा करना for the चाहता हूं, forgiveness of my sins, क्योंकि तूने मेरे पापों को ले लिया है, and I receive the gift of eternal life. और मैं इस जो अनंत काल का जीवन को अपने जीवन में मैं उसका स्वागत करता हूं। And Lord, I want to thank you for the promise which you given to me. और यीशु मसीह, आपके इस हर एक वाचा के लिए मैं धन्यवाद कर जो तूने मुझे दिया I है, accept you. और मैं आपको स्वीकार करता हूं, Thank you for your promise. और आपके इस वाचा के लिए धन्यवाद करता हूं, Thank you for the gift of salvation. और इस उद्धारकर्ता के लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद Thank you करते for हैं, forgiving my sins. और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद In करता हूं, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Now you get to live और अभी आप जिएंगे and you never get to die. और आप अनंत काल के लिए कभी मरेंगे नहीं। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे।